Also, you will find the friends. This is Rajdeep. Welcome to Learning Insight. In this video, we'll discuss previous year question paper 2, social work, June 2020. That means आपका जो लास्ट एग्जाम हुआ था सोशल वर्क नेट जेआरएफ का, इस पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर को एक्सप्लेनेशन के साथ। एंड हम क्वेश्चन पेपर के बारे में अगर बात करते हैं तो दैट क्वेश्चन पेपर वाज वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर if you compare with the paper of 2017, 18 and 19. सो डेफिनेटली हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड और एक बात, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है गूगल क्लासरूम के लिए जो फुल स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है जिसमें सोशल वर्क पेपर 2 के लिए आप अगर इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं देन यू आर मोस्ट वेलकम। इसके बारे में डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू विल गेट इंफॉर्मेशन अबाउट गूगल क्लासरूम। सो फर्स्ट क्वेश्चन है जो 2020 पेपर में आया था। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग सिस्टम इन ऑर्डर। फॉलोइंग सिस्टम को ऑर्डर में लाने के लिए बोला गया था। सो हमें पता है जो सिस्टम थ्योरी है, वी टॉक अबाउट द सिस्टम थ्योरी। एंड सिस्टम थ्योरी जो है वो डेवलप हुआ था 1970 में, एंड दैट वाज डेवलप बाय Pinchas and Minahans, and this theory is the system and ecology. This theory is called system and ecological theory. So इस थ्योरी में डिस्कस किया गया था 4 सिस्टम के बारे में। जो सिस्टम है, जो सिस्टम डेवलप किया था पिनकस एंड मिनाहम्स ने, एंड दिस सिस्टम्स आर चेंज एजेंट सिस्टम, क्लाइंट सिस्टम, टारगेट सिस्टम एंड एक्शन सिस्टम। सो जो एनटीए ने आंसर की दिया था वो ऑप्शन 2 था, बट करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज change agent system, client system, target system, and then action system. Now next question, the convention on the elimination of all form of discrimination against women, CEDAW, was adopted by the UN General Assembly. So महिला के खिलाफ जो सभी प्रकार के भेदभाव को एलिमिनेट करने के लिए जो जनरल असेंबली में अडॉप्ट किया गया था वो कौन सा ईयर में अडॉप्ट किया गया था? दैट वाज अडॉप्टेड इन द ईयर, एक्चुअली अडॉप्टेड इन द ईयर 1979, बट यहाँ पे ऑप्शन 1979 नहीं है। सो हम लोग क्लोजेस्ट टू 1979 है 1980, तो 1980 में हम लोग जाएंगे। सो एक्चुअली इट वाज अडॉप्टेड इन द ईयर 1979 by the Union General Assembly, United Nations General Assembly, and that bill described as an international bill of right for women, and that was effective from 3rd September 1981. So if they ask for adopted, that you should go for 1979 if option is there, but so we in these options we are not finding anywhere 1979, so we'll just move to 1980, that is closest to 1979. Now next question, who coined the terms that is proletariat and बुर्जवाइस एंड पोलिट्रिट जो है वो टर्म को किसने कॉइन किया था? दैट मीन्स दैट वाज गिवन बाय विथ रिगर्स टू सोशल क्लास, सो दैट वाज गिवन बाय कार्ल मार्क्स ने दोनों टर्म को कॉइन किया था। एंड दैट वाज coined in the year 1948, and they observe the society as a whole more and more splitting out onto two great hostile camps, and these are these two, that means proletariat and bourgeois. Now next question, okay, you have to match the following options, that is option A, focus on several level of intervention. सेवरल लेवल ऑफ इंटरवेंशन इसमें क्या होता है, जनरलिस्ट जो परस्पेक्टिव्स होता है वो सेवरल लेवल्स ऑफ इंटरवेंशन होता है, क्योंकि जर्नलिस्ट जो परस्पेक्टिव्स होता है वो नॉट स्पेशलाइज। तो जनरल एज अ जनरल पर्सन you have different knowledge about macro, micro and meso level intervention you can took up because you have generalist perspectives. Now second, that is focus on person in environment context of practice and situation. That means person in environment, when we talk about, is simply related to ecosystem. Eco means environmental system perspective, that is person in environment context situation or practice, so we can call this ecosystem perspectives. Now focus on dynamic interplay of biological and social system, that is related with general system perspectives. Option C, that is the general system perspectives, is dynamic interplay of biological and social system focus. Now if that focus on the problem and effects of discrimination, it's related with
ethnic sensitive perspectives. So option A with 2, option B with 1, option C with 4, and option D with 3. Now next question. Okay, again we have to match. So first, self-awareness. Self-awareness is related with a degree of consciousness about thinking, feeling, and action. It's about self-awareness. Now self-esteem is related with evaluation of self based on reflection of social comparison. Now third, self-respect. Self-respect is related with a self-belief to evaluate behaviors and action categorized by moral and ethical standard. Now option D, self-confidence, is related with internally consistent feeling about self-belief. So option A with 2, option B with 1, option C with 3, and option D with 4. Now next question. The process where social policy is transformed into social service is called. जो एक प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक नीति को समाज सेवा में बदल दी जाती है, वो ये क्या कहलाते हैं? ये दिस इज कॉल्ड सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन. एंड सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व करता है बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट एजेंसीज को, मीन गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज को. एंड सोशल वेलफेयर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो टर्म, वो ट्विन कंसेप्ट है, डिनोटिंग सोशल वेलफेयर एक है एंड सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेशन अलग है. सो सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो इज अ प्रोसेस, ये प्रोसेस होता है जिसमें सोशल पॉलिसी को हम लोग सोशल सर्विस में ट्रांसफॉर्म करते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. which of the following models was developed in response to the prevailing limitation in conceptualizing social work methods integrated social work practice? कौन सा यहाँ पे मॉडल्स है जो डेवलप किया था इन द रेस्पॉन्स टू इंटीग्रेटेड सोशल वर्क प्रैक्टिस? हम लोगों को पता है जो सिस्टम थ्योरी के डेवलपर थे वो है पिंकस एंड मिनहाम्स मॉडल. ये मॉडल जो था वो इंटीग्रेटेड सोशल वर्क प्रैक्टिस के कंसेप्चुअलाइजेशन प्रैक्टिस मेथड्स के ऊपर प्रिवेल किए थे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? सो फर्स्ट ऑप्शन जो है, क्वालिटी स्टडी इज कंडक्टेड बाय केस स्टडी. क्वालिटी स्टडी मीन्स स्टोरी रिलेटेड स्टडीज that can be conducted as a case study. ये करेक्ट है. Then qualitative means this that just sentence, stories, narratives. These studies are can be conducted by case study. Now quantitative study conducted by survey method. Yes, it's conducted by survey methods because it's play with numbers, and numbers that can be collected by survey in your home visit, like how many children you have, how many family members you have. These are kind of quantitative studies. Now interview is conducted in questionnaire methods. No, interview cannot be conducted in a questionnaire methods because interview is conducted by interview schedule or interview guide, and questionnaire is itself is a method, and an interview cannot be conducted through questionnaire. Interview is conducted through or in interview guide or interview schedules. Now next options, that option C, option 4, that is each unit of universe has equal chance of selection in sample थ्रू रैंडम सैम्पलिंग. यस, रैंडम सैम्पलिंग में सभी सैंपल को इक्वल चांस होता है, यूनिवर्स को इक्वल चांस होता है कि बीइंग सिलेक्टेड इन द सैंपल. सो आपका यहाँ पे सभी करेक्ट है, बट इंटरव्यू इज कंडक्टेड इन क्वेश्चनर मेथड, ये करेक्ट नहीं है बिकॉज इंटरव्यू इज कंडक्टेड थ्रू इंटरव्यू गाइड और इंटरव्यू शेड्यूल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स प्रोविजन फॉर मैटरनिटी रिलीफ? भारतीय संविधान के द्वारा कौन सा अनुच्छेद में मातृत्व की राहत के प्रदान करता है? सो वो है आपका आर्टिकल अनुच्छेद 42. दैट मीन्स दिस प्रोविजन टॉक्स अबाउट जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ फॉर द वुमेन. Now maternity relief just and human condition of work and for maternity relief. Now next question. The Human Development Index HDI is comparative study of. यहाँ पे दो ऑप्शन करेक्ट है बिकॉज इफ यू टॉक अबाउट दिस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI में 4 इंडिकेटर्स होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जो फर्स्ट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दैट इज रिलेटेड टू हेल्थ, एंड लिटरेसी, दैट इज रिलेटेड टू स्कूलिंग और ईयर ऑफ स्कूलिंग्स, एंड इनकम जो होता है वो है पर कैपिटा इनकम फॉर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. सो चारों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कंपेरेटिव मेजर्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में. सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा
A, B, C and D. So 1 and 2 both are correct as per NTA answer keys. But here should be in the one options A, B, C, D should be there, but it's not fine. That's why they have given both the options correct. So ये जो HDI जो रिपोर्ट होता है वो एनुअली पब्लिश किया जाता है एंड इसके द्वारा इस एनुअली रिपोर्ट के द्वारा UNDP जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो कंट्री को रैंक करता है कि इस कंट्री कितने नंबर पे है एज पर HDI इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. सो इफ यू आर स्टिल वाचिंग, अगर अभी भी आप ये वीडियो देख रहे हैं देन प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को एंड भाई सब्सक्राइब भी कर लो इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब द चैनल. Now next question, the concept of group dynamics is attributed to, जो ग्रुप डायनामिक कंसेप्ट है वो किसके अवधारणा का मीन्स एट्रीब्यूटेड है, किसके एट्रीब्यूटेड है? वो एट्रीब्यूटेड है आपका कर्ट लिविन ने एट्रीब्यूटेड किया था ग्रुप डायनामिक्स को. एंड ये कर्ट जो लिविन थे वो थे सोशल साइकोलॉजिस्ट एंड who coined the term group dynamics to describe the positive and negative forces within group members. Negative and positive group members में जो forces होता है उसको describe करने के लिए उन्होंने group dynamics term को coin किया था. Now next question, assertion. Okay, so assertion is education leads to participation. Okay, correct. Individual reason that have given individual face difficulties in participation in any activity due to unawareness. So both are correct, but R is not a correct reasons, correct explanation for A. Now next question, steps of community organization process is involved. कौन से steps क्या क्या involve होता है community organization process में? हमें पता है कि community organization process में आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट होता है, आइडेंटिफाई द नीड, कम्युनिटी नीड को फर्स्ट आइडेंटिफाई करना है. देन प्रायोरिटाइजिंग द नीड मीन्स कौन सा नीड फर्स्ट इंपॉर्टेंट देना है, कौन सा नीड सेकंडली इंपॉर्टेंट देना है, ये प्रायोरिटाइजिंग करना है नीड को. एंड देन एक्सप्लोरिंग द रिसोर्सेज, दैट मीन्स एक्सप्लोर क्या क्या रिसोर्सेज हम कम्युनिटी पे अवेलेबल है और अदर्स लोकेलिटी में अवेलेबल है कि हम लोग इसको यूटिलाइज कर पाएंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में. एंड देन वी डेवलपिंग द प्रोग्रेस. So first identifying the needs, then prioritizing the needs, and then exploring resources, and then lastly developing progresses. Now next question, purposefully established relationship are key to solution of the problem. Assertion में बात बोला गया, yes ये correct है because purposefully established relation में problem solve होता है. Okay, हमें agree है. Then establishment of relationship is the essential part of rapport building leading to the solution of the problem. रेपो बिल्डिंग में रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये वंस एस्टैब्लिशमेंट हो जाए आपका क्लाइंट एंड सोशल वर्क के बीच में, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग इजी हो जाता है. सो बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ गिल्सशाफ्ट एंड ग्ले एंड जेमिसशाफ्ट, जो दोनों टर्म है वो किसने एट्रीब्यूटेड किया था? सो दैट वाज एट्रीब्यूटेड बाय ऑनिस, बिकॉज ये दोनों जो टर्म है वो रिलेटेड है सोसाइटी एंड कम्युनिटी के ऊपर, एंड सोसाइटी एंड कम्युनिटी के ऊपर रिलेटेड है. एंड वो टर्म जो है वो कॉइन किया गया था 1887 में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिस ऑफ दुर्हेम्स थ्योरी ऑफ डिवेंस. दुर्हेम थ्योरी के जो थ्योरी ऑफ डिवेंस है वो किसका बेसिस है? so, जो वो बेसिस है एनोमी जो टर्म था वो implies the social integration influence delinquency partly through the experience of anomie and school anomie. Hence anomie and school anomie should be mediate some of the effects of social integration on delinquent behavior. So जो डिवेंस बिहेवियर दुर्खेम का था, थ्योरी ऑफ डिवेंस बिहेवियर, डिवेंस वो है आपका एनोमी के रिलेटेड, स्कूल्स एनोमी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following skills are essential in resource mobilization? रिसोर्स मोबिलाइजेशन में कौन सी स्किल्स एसेंशियल है? स्किल्स इन आइडेंटिफाइंग रिसोर्सेज, ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिसोर्स मोबिलाइजेशन के टाइम पे. स्किल इन प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिसोर्स मोबिलाइजेशन के कारण. देन स्किल्स इन लोकेलेटिंग इंडिजिनियस, लोकल रिसोर्स को आइडेंटिफाई करना और लोकेटिंग करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है.
but skill in collecting cash only is not a essential for resource mobilization, because collecting cash money is not a good skills for resource mobilizing. So option A, B and C is correct, but option D is not a correct option for resource mobilizing skills. Now next question: which of the following duties have been prescribed by Indian Constitution for the citizen of India? So सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए कौन सा ड्यूटीज प्रेस्क्राइब किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन सिटीजन के लिए? टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया था. यस, गुड, ये ऑप्शन करेक्ट है. टू प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, ये भी हेरिटेज को प्रिजर्व करना, रिच हेरिटेज वो भी हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, प्रेस्क्राइब है, ड्यूटीज होता है आपका. करेक्ट है. टू मिनिमाइज इनकम इनइक्वालिटीज, ये कहीं पे भी ड्यूटीज नहीं है हम लोग का कि हम लोग को इनकम को इनइक्वालिटीज को मिनिमाइज करना, ये हमारा काम नहीं है. देन स्पेशल सिटीजन का काम नहीं है. देन टू डिफेंड द कंट्री, ये हम लोग का इंडिया का कंट्री को डिफेंड करना दूसरे कंट्री के डिबेट में, ये भी हम लोगों को ड्यूटीज है. बट टू मिनिमाइज द इनकम इनइक्वालिटी इज नॉट ए ड्यूटीज prescribed by Indian Constitution for the citizen of India. So आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन A, B and D. So C is not a correct option here. Now next question or last question for this video. Functional approach in was, so functional approach जो है social case work में वो डेवलप किया गया था दोनों के द्वारा, because यहाँ पे जेसी टॉफ एंड ऑटो रैंक दोनों ने डेवलप किया. कैसे? क्योंकि जेसी टॉफ फाउंडेड द फंक्शनल स्कूल ऑफ सोशल केस वर्क प्रैक्टिस. जेसी टॉफ ने फाउंड किए थे सोशल फंक्शनल अप्रोच को सोशल केस वर्क में प्रैक्टिस में. बट जो जेसी टॉफ ने डेवलप किया था वो जो फंक्शनल अप्रोच, वो बेस्ड ऑन द साइको एनालिटिकल अप्रोच ऑफ ऑटो रैंक का जो साइको एनालिटिकल अप्रोच था उसके ऊपर बेस करके ये फंक्शनल अप्रोच को जेसी टफ ने बनाया था. इसीलिए ये दोनों ऑप्शन करेक्ट होगा. सो एनटी हैज गिवन both the answer correct. Those who opted for option 1 or option 2, both are correct, because that functional approach was developed by J.C. Troft, but based on idea of Otto Rank, psychoanalytic approaches of Otto Rank. So this is your correct option, both A and B, that means 1 and 2. So this is all about. If you like the content, please do like, share and subscribe. And अगर आप Google Classroom के लिए interested है, then please go to description box of this video. You will find the link and you can see the details for the Google Classroom. Thank you. Thanks for watching.